हेलो। चलिए, तो एक और नया वीडियो स्टार्ट करें। सो लास्ट वीडियोस में हमने बात करी कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करी, उस पर क्वेश्चंस करे। हमने एमीटर, वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर, ये सारी चीज़ों की बातें हमने लास्ट लेक्चर में कर ली थी। ये लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है, मे भी थोड़ा सा लंबा चला जाए, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th का, चाहे बोर्ड्स की पर्सपेक्टिव से हो और ऐसे भी। हम बात करने वाले हैं ओम्स लॉ की। यहाँ पे हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, एंड देन विल टॉक अबाउट व्हाट इज स्टेटमेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2 नंबर 3 नंबर के मार्क्स में। अब वो हमेशा ही अक्सर वो बोर्ड्स के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, हम इस फॉर्मूला को डिराइव करने की कोशिश करेंगे, विच इज V इक्वल्स टू आई आर, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेजिस्टेंस। ठीक है। और साथ ही साथ हम ओम्स लॉ की वेरिफिकेशन भी करेंगे, हाउ एंड फ्रॉम वेयर द ओम्स लॉ हैज केम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑल सेट। सो बात करें अगर ओम्स लॉ की, ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ठीक है, मैं एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप, बेटर आई टेक इट हियर। ये वाला सेम फिगर इफ यू फाइंड यू विल गेट इन द एनसीईआरटी बुक, सेम फिगर आपको मिल जाएगा। ठीक है। So, okay, let me enlarge it. Okay, I hope it's visible. Let me check. Let me check. Yeah, all clear. Now, see, in this one figure, what is my aim? This is a kind of circuit diagram. Now, in this one, a voltage, a volt. This is the voltmeter. This is the ammeter, and this is the resistance. सारी चीजें बात करें। रेजिस्टेंस अगर थोड़ा सा अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो इसको आप समझ लो कि लेट्स से दिस इज अ बल्ब or fan or anything, something. Okay, it is connected here. Now what I am doing, let's say here I have connected all the batteries. At first of all I am using all the battery, so I will take the current, it will go pass here, and I will take the current from here. So here all the batteries, all the voltage, basically battery, what does it supply? It supplies the voltage. Okay, or more better way what I can say, it supplies the potential difference. Potential difference. Okay, now what's my idea is, here I am seeing what is the reading on ammeter. Ammeter, what does it measures? It measures the amount of electric current flowing through that conductor at that point. Okay, so switch is on, everything is connected. Now at first I will take this connection. Okay, let me remove these things. Okay, at first I will take this connection, and then I will see what is the reading in the ammeter, and at the same time I will see what is the reading in the voltmeter. Now I remove one battery. Now I'm connecting from here only, so that I'm using the 1, 2 and 3 batteries only, and then I will see again, I will note down what is the value of voltmeter and what is the value in the ammeter. Okay, same thing again I will repeat. I will join from here, and then I have connected only 2 battery. So see what I am doing here, I am decreasing the voltage, or you can say the potential difference I am decreasing, and at the same time I am checking what is the value on ammeter and what is the value on voltmeter. Okay, so I took all the values, I repeated the experiment 2 3 times, and I took all the values by changing. What's my goal is, by changing the value of voltmeter. Okay, by changing the value of voltage, basically more precisely if I say by changing the value of voltage, what is my change in the ammeter, or you can say what is how the electric current, the flow of electric current changing, what is the value on the potential difference or the voltmeter, and how does it affect the intensity of bulb glowing. So by doing so, i I did a lot of trials, and then I draw a graph between V and I. Okay, let me try if I can draw. Okay, this is fine. So I took a graph like this one, where on one axis I draw the V, okay, whatever the voltage I am applying, and another axis I applied the I. Okay, what is the electric current? By doing so, what I got some points like this one. Okay, some points like this one. By adding all of them, I got a straight line. A straight line
that also passing through the origin, that also passing through the origin. So it's somewhere, you know that if you understand थोड़ा बहुत अगर मैथ्स की बातें करें, if you get a straight line passing through the axis origin basically, so एक चीज यहाँ से क्लियर होता है कि v जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, ओके, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक करंट के। हम जितना भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं डायरेक्टली वो अफेक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट को, ओके। तो ये जो रिलेशन है, ठीक है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यही कहीं ना कहीं इसी को हम ओम्स लॉ बोल देते हैं। ओम्स लॉ यही है। दिस इज द सेम थिंग विच आई वाज विच वी विल बी टॉकिंग अबाउट, ठीक है। अच्छा, ये आइडिया जो है मैं नाम बता दूं, जॉर्ज साइमन ओम। अच्छा, ओम वर्ड पता नहीं शायद पहले सुना हो या नहीं सुना हो, ये ओम वर्ड हम बहुत अभी यूज करने वाले हैं एक्चुअली। इसमें एक रेजिस्टेंस का वैल्यू आएगा जिसका कि ऐसा यूनिट ओम ले लिया गया। सो इन द ऑनर ऑफ हिज नेम, ये दिस वाज द साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम who came up with this idea and gave the relation between applied voltage and the electric current। तो वहां से ये एक रिलेशन निकल के आया अपने पास, ठीक है। अच्छा, यहां से एज यू नो वी आई गॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर हम हटाए यहां से तो हम लिख सकते हैं v इक्वल्स टू आई आर, ठीक है, जहां पे आर क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है, आर हो गया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अच्छा, यही आर जो है आगे हम और देखने वाले, इसके बारे में और हम डिटेल में बातें करेंगे। इट इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आया v इज इक्वल टू आई आर, इसी को बोल देते हैं ओम्स लॉ। अच्छा, ये ऐसा नहीं कि इसी को बोल सकते इसको नहीं बोल सकते, दोनों ही चीजें। जब हम व्हेन वी विल बी डूइंग द प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स तो मोस्टली हम ये फॉर्मूला याद करने वाले हैं, ठीक। आई गेस हम स्टार्टिंग से जो भी लेक्चर कर रहे हैं, तीन चार तीसरा या चौथा चौथा आई गेस चौथा या पांचवा ये फॉर्मूला होने वाला है। तो ये फॉर्मूला एक इंपॉर्टेंट है जो याद रखने का, v इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। जहां पे v क्या हो गया, v क्या हो गया, क्वेश्चन में ये वोल्टेज की फॉर्म में दिया रहता है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में दिया रहता है, तो v क्या हो गया अपना वोल्टेज, ठीक है। v क्या हो गया वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसको बोल सकते हैं, राइट। और I क्या होगा हमारा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, और R जो हो गया हमारा वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, V जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और I जो कि इलेक्ट्रिक करंट है, इसके बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी है। नाउ माय फोकस विल बी ऑन रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस जो होता है इट इज द, अच्छा एक साथ हम बात करें रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टर की बातें एक साथ हम कर लेंगे। फिलहाल हम इसके यूनिट्स की बात करते हैं। रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन ओम, ठीक है, जिसको कि ये एक सिंबल से, ये ग्रीक सिंबल है, ग्रीक लेटर है, हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, इट इज ओम, ठीक है, ओम इसको रीड करते हैं। क्लियर है, क्लियर, ओके, एंड वी सो इट लाइक दिस वन। अच्छा, ये सारी चीजें होगी, बात कर लेते हैं इसके स्टेटमेंट की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स दे आस्क डायरेक्टली द स्टेटमेंट ऑफ व्हाट इज द ओम्स लॉ, ठीक है। तो बात करें अगर ओम्स लॉ की, सो वी कैन राइट डाउन, आई विल राइट डाउन फॉर यू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ states, Ohm's law state that the potential difference, the potential difference V across a conductor is directly प्रोपोर्शनल, अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझ में आ रहा है ना, लास्ट लेक्चर्स में हमने बात करी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, ये सारी चीजें हम बात कर चुके हैं, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, या फिर व्हाटएवर आई से इलेक्ट्रिक करंट
denoted by letter I, okay, flowing through it. Through what? Through the conductor. ठीक है? Provided that, now it is important, provided that provided that the temperature temperature remains almost constant. Almost constant. अच्छा, मैं ऑलमोस्ट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वेन एवर द इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो इन एनी इलेक्ट्रिक कंडक्टर, ठीक है, तो उस टाइम इट इज नॉट पॉसिबल कि हम उसके टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकें। ठीक है, हम बात करेंगे क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। बट ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे उसके टेम्परेचर में, देन वी कैन से दैट कि ओके, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग। क्लियर? ओके, लेट मी चेक रिकॉर्ड तो हो रहा है कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि सारा बात बोल लिया और फिर पता चले रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा। हाँ, हो रहा। चलो, एवरीथिंग एवरीथिंग इज फाइन। ओके, तो ये चीज हो गई। देख, दो चीजें हैं यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली है अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की। तो पहली बात तो उसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब कि इट शुड नॉट चेंज। ओके, इट शुड नॉट चेंज। और टेम्परेचर ही नहीं, बाहर की और भी जो कुछ और फिजिकल कंडीशंस है, फिजिकल कंडीशंस है, वो भी सेम ही होना चाहिए, उसमें भी कुछ चेंजेस नहीं होने चाहिए, और एल्स आपका ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। ठीक है, उसमें चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि when you change the temperature and when you change some of the physical conditions, then there will be a change in the value of resistance R, और अगर R में changes होगी, then you cannot say it directly, there will be some change in the whole law। ठीक है, so this law is valid until and unless our temperature is almost constant and physical conditions are also same। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे जो रेजिस्टेंस एक वर्ड आया है, सी यहाँ पे जो V इक्वल्स टू आई आर, ये आर वर्ड जिसको कि हमने बोला रेजिस्टेंस, ये क्या होता है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड। रेजिस्टेंस वर्ड से ही समझ में आ रहा है समथिंग, यू नो, काइंड ऑफ रुकावट, जो किसी चीज को रोक रहा है। ठीक है, ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो अच्छा, अगर इसको मैं रीअरेंज करने की कोशिश करूं, जैसे कि V इक्वल्स टू आई आर है यहाँ पे, ठीक है, तो इफ आई से, कैन आई राइट I इज इक्वल्स टू V बाय R? Okay, or else in another way I can say that R is equals to V by I, लिख सकते हैं। ठीक है, अभी देखो, R is directly proportional to the applied voltage या फिर potential difference, but inversely proportional to electric current। ठीक है, it means if I increase the resistance का value, ठीक है, so current in the circuit will decrease, right? Current in the circuit will decrease, but if I am in decreasing the value of resistance, automatically the current in the circuit will increase, because R and I are inversely proportional, but R and V are directly proportional। So that what I am, let's try to understand कि resistance होता क्या है, why does it causes the change in the electric current। ठीक है, so resistance basically, हम ये बोल सकते हैं कि if any current, if electrons are moving in a circuit, so there is something, some obstruction, kind of some obstruction is there that causing the loss of energy। ओके, दैट्स व्हाई हम जितना करंट इस एंड से भेज रहे हैं, करंट कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड से, उतना ज्यादा करंट नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो फ्रॉम वेयर, व्हाट कॉजेज दिस रेजिस्टेंस इन वायर, what is the cause, what is the cause behind this resistance। अच्छा, इस चीज को चाहे तो हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक रोड हो गया, ठीक है, जहाँ पे जितने भी कार्स हो गए, जितने भी कार्स हैं, वो एक दूसरे के आगे पीछे मूव कर रहे हैं, और मान लेते हैं कि एक ट्रैफिक जैम लगा हुआ। ठीक है, तो ऑल द कार्स आर, ओके, यू नो, बिहाइंड ईच अदर, और जब यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो ये कार्स जो है, दे विल मूव स्लोली, दे विल मूव स्लोली।
ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट इन अ इलेक्ट्रिक वायर, in an electric wire, if you consider all the cards as electrons, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, एंड लेट्स से इफ द पाथ इज कंजस्टेड, ठीक है, सो all the electrons are actually colliding with each other, okay, they are colliding with each other, and not only with each other, देखो इलेक्ट्रॉन्स ऐसा नहीं है कि मतलब एक पाइप है उसमें बस पानी फ्लो कर रहा है एंड इजीली दे आर गोइंग, इफ यू रिमेंबर अ लिटिल बिट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज बीच में होता है एंड देयर आर सेल्स लाइक दिस वन जहां पे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, सो this is not just a free space inside a conductor, it's not a free space, no, it is also solid, right, and if it is a solid means it is made up of atoms, ठीक है, इसके अंदर भी जो भी एटम्स होंगे, when these electrons are moving so it is colliding with these atoms as well ना, एटम से कोलाइड कर रहा है, उसमें some impurities are there, पूरा प्योर तो आता नहीं कोई कुछ भी, so if some impurities are there they are colliding with that one also, positive charges they are colliding with that one also, and they are colliding with each other, ठीक है, खुद में भी वो कोलाइड कर रहे हैं, इन सब के कारण क्या हो रहा है कि देयर एनर्जी गेट reduced, that results in the reduced electric current, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, तो ये रीजन है कि रेजिस्टेंस आता कहां से, क्यों होता है, और उसके कारण इलेक्ट्रिक करंट कम क्यों होता है, यही सारे रीजन है कि एट द एंड जितना करंट हम भेज रहे हैं यहाँ पे उतना ज्यादा पूरा नहीं आ पाता है, लेट्स से कि 100 एम्पियर का हमने करंट भेजा, हो सकता है 98 एम्पियर करंट ही दूसरे एंड से मेरे पास वापस आए, ठीक है, so these are the reason why our resistance and the current is inversely proportional and the how resistance is being produced inside any conductor, अच्छा, these are the reasons only because of which heating effect create होता है, because of these collisions between इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन के एटम के साथ या इलेक्ट्रॉन दूसरे इम्प्योरिटीज के साथ जो कंडक्टर में मौजूद है, उनके कारण क्या हो रहा है कि उसमें एक हीटिंग इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, अच्छा वेल ये सबसे लास्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर का, वहां पे हम फिर से बात करेंगे इस बारे में, सो बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, अच्छा, इस चीज को अब यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो, मैंने जब बोला ना कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो टेम्परेचर, तब ओम्स लॉ वैलिड है, ठीक है, अच्छा, पर ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम रहने वाली बात आप यहां से समझ सकते हो, इसलिए मैंने बोला कि जब भी किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो उसका टेम्परेचर सेम नहीं होगा, बिकॉज ऑफ दिस कॉलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, पॉजिटिव चार्जेस, कुछ ना कुछ हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होगा, हीट जो टेम्परेचर जो है उसका इंक्रीज होगा ही होगा, ठीक है, तो हम उसको कांस्टेंट मान के नहीं चल सकते, एग्जैक्टली कांस्टेंट नहीं होगा बट अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट हम उसको लेके चल सकते हैं, ठीक है, टेल मी इफ इट इज क्लियर टिल हियर, इफ इट इज क्लियर टिल हियर, क्लियर है, अच्छा, बात करते हैं ग्राफ की, स्टार्टिंग में हमने ग्राफ से स्टार्ट करा, ये रही ये ग्राफ, ठीक है, मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ, प्रॉब्लम, ओके, नाउ सी, ये हो गया, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ v और यहाँ पे हो गया i, ठीक है, एंड आई ड्रॉ ग्राफ, अच्छा, ये ग्राफ जो है कैसे भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, नो प्रॉब्लम, बस एक स्ट्रेट लाइन होगा विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, तो एक कोई स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, लेट्स से लाइक दिस वन, एनी एनी नो प्रॉब्लम, तो दिस इज अ ग्राफ ऑफ v वर्सेस i, ठीक है, अच्छा, एनी आइडिया अबाउट हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ दिस वन, सो स्लोप अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो सी, स्लोप करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रॉम एनी पॉइंट आई ड्रॉ लाइक दिस वन, ओके, सच दैट इट इज मेकिंग 90 डिग्री, एंड ये लेंथ लेते हैं ए बी और सी, तो ये ए बी जो लेंथ है डिवाइडेड बाय बी सी लेंथ, ठीक है, अगर आई गेस ट्रिगोनोमेट्री अगर हो गया होगा तो यू नो दैट कि ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, इट इज नथिंग बट द टेन थीटा, अच्छा थीटा क्या है यहाँ पे, ये वाला थीटा, ठीक है, तो बेसिकली ये जो वैल्यू होता है, अगर उतना डिटेल में नहीं जाना है, इस ये डिस्टेंस, ये लेंथ बेसिकली ए बी बाई बी सी, इट एक्चुअली उसका जो रेशियो होता है, इट एक्चुअली गिव्स यू द स्लोप,
ठीक है, ये हम फाइंड कर सकते हैं कहीं से भी, कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं हम, चाहे तो यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे भी सेम स्लोप आएगा क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप सेम आता है। ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे गौर करने की कोशिश करें तो देन वी विल सी दैट दिस ए बी डिवाइडेड बाय बी सी, ए बी है क्या एक्चुअली, ए बी is actually the voltage V, and this BC length which is from here, it is nothing but the current। अच्छा, V by I होता क्या है, if you forget I'll tell you, V equals to IR, V is equals to IR। तो यहां से R का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, V by I। सो ये जो वैल्यू है इट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ R ओनली। ठीक है। सो कंक्लूड क्या करा हमने कि किसी भी द ग्राफ आई कैन से the slope, well fine, the slope of V versus I graph gives the resistance। ठीक है, डायरेक्टली उसका स्लोप निकालो, स्लोप निकालने का फिर से मैं बता देता हूँ, स्लोप कैसे निकालोगे, कहीं पे भी ये ड्रॉ करो, ए बी लेंथ कितना है मेजर इट, बी सी लेंथ कितना है मेजर इट, ए बी डिवाइडेड बाय बी सी विल गिव यू द स्लोप। इस पे एक क्वेश्चन भी है, मैं बताऊंगा, अभी करेंगे। ठीक है। अच्छा, बट हो सकता है कभी कभी ग्राफ इतना आसान ना हो। ठीक है, हो सकता है ग्राफ कभी कभी इतना आसान ना हो। सो कभी कभी दे विल चेंज द एक्सिस। ओके, सी दिस वन, sometimes they changes the axis, like let's say this is V, this is I। तो आपने easily यहाँ से इसका स्लोप निकाला एंड देन यू से दैट कि ये इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू है। ठीक है। क्या हो अगर हमारे पास V बाय I ग्राफ ना दे कि I बाय V ग्राफ दे दे, तो देन व्हाट यू विल डू, I वर्सेस V का ग्राफ हो, देन लेट्स से मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ, लेट्स से लाइक दिस वन, एनी ग्राफ। ठीक है। सो यहाँ भी हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं, सिंस इट इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ग्राफ तो हम यहाँ भी, स्लोप तो हम यहाँ भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी। अगर हम लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, सो ए बी बाय बी सी करेंगे, देन आई विल गेट द वैल्यू ऑफ स्लोप। ठीक है, क्लियर, लेट मी चेक रिकॉर्डिंग, या इट्स गोइंग। Okay, so I can get the value of slope from here only, here also, but this is not equals to resistance। कभी ये गलती मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे जो भी स्लोप तुम निकाल रहे हो इट इज ए बी डिवाइडेड बाई बी सी। पहले देख तो लो कि ए बी है क्या, ए बी यहाँ पे आई हो गया और बी सी यहाँ पे वी है। डिपेंड्स कोऑर्डिनेट्स क्या है, कौन से एक्सिस पे क्या तुमने लिया है, डिपेंड्स। ठीक है, तो ये एक्चुअली आर नहीं होके इट इज वन बाय आर है। ठीक है, रेजिस्टेंस का इनवर्स है, रेसिप्रोकल है। ठीक है। सो फ्रॉम हियर वन थिंग आई कैन डू, अगर आई बाय वी का ग्राफ दिया हुआ है तो उसका स्लोप का इनवर्स अगर हम ले, बेसिकली मैं ये बोल रहा हूं कि वन बाय स्लोप का अगर हम वैल्यू ले, देन आई विल गेट द वैल्यू ऑफ आर। समझ आया क्या बोला मैं? ठीक है, फिर से मैं बताता हूँ। जब बी वी बाय आई का ग्राफ है, सिंपली दिस, नो प्रॉब्लम, उसका स्लोप निकालो, जो स्लोप है वही उसका रेजिस्टेंस है। ठीक है। लेकिन अगर आई बाय वी का ग्राफ रहे, ये चीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द थिंग्स गिवन ऑन द डिफरेंट एक्सिस, ये वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, और दोनों एक्सिस पे क्या वैल्यूज दिया हो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली ऐसा नहीं कि बस ग्राफ देखा उसका स्लोप निकाला एंड इक्वल्स टू रेजिस्टेंस, नहीं। Sometimes to trick you, they will change the axis. I को y axis पे दे देंगे और v को x axis पे दे देंगे। That time when you find the slope, that is a by ab by bc, so but ab यहाँ पे I का वैल्यू है, ठीक है, और bc जो है यहाँ पे v का वैल्यू है। In that case you get the 1 by r। अच्छा, इस केस में तुम क्या करो, अगर स्लोप का इनवर्स निकालो यानी कि 1 by स्लोप निकाल लो, तो तुम्हारे पास r का वैल्यू डायरेक्टली आ जाता है। ठीक है, तो डिपेंड कि कौन से एक्सिस पे क्या दिया हुआ है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? टेल मी इफ इट इज क्लियर, देन वी कैन मूव ऑन। लेट मी चेक, आई एम नॉट लीविंग एनीथिंग, आई गेस सो। ओके, ये हो गई इतनी सारी चीजें, सारी बातें। अच्छा, जब रेजिस्टेंस की इतनी सारी बातें होगी, रेजिस्टेंस को एज आई टोल्ड यू, रेजिस्टेंस जो है इट इज मेजर्ड इन ओम। ठीक है। अच्छा, एक और बात हमने बताया कि R इज इक्वल टू वी बाई आई होता है। ठीक है, लेट से मैं इसको 1 पुट कर दूं, वोल्टेज को 1 पुट कर दूं और करंट को भी
1 पुट कर दूं, तो यहां से जो भी रेजिस्टेंस का वैल्यू निकल के आएगा दैट विल बी 1 ओम। सो लेट अस डिफाइन 1 ओम। ठीक है, 1 ओम अभी क्या होता है, व्हाट इज 1 ओम? कभी कभी एक दो नंबर के क्वेश्चंस में ये आ जाता है, खासकर स्कूल्स के एग्जाम में दे प्रेफर गिविंग यू सम डेफिनेशंस एंड ऑल। ठीक है, सो 1 ओम द रेजिस्टेंस, ओके मैं लिख देता हूं। आई नो माय राइटिंग इज हॉरिबल, डोंट वरी, मैं दूंगा सारे का नोट्स में दूंगा। ठीक है, ये इन द नोट्स एवरीथिंग इज देयर। ओके, सो द रेजिस्टेंस ऑफ अ conductor is said to be 1 ohm. The resistance of a conductor is said to be 1 ohm if the potential potential difference of 1 volt, okay, potential difference of 1 volt causes, let me check which हुआ क्या, everything fine, no? Yeah, everything fine. So causes 1 ampere 1 ampere of current to pass through it। ठीक है, क्या बोला मैंने कि किसी भी कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम एक 1 ओम बोलेंगे व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज causing 1 एम्पियर। ओके, ये दो बार आ गया ना यहाँ पे, 1 ampere of current to pass through it, then that is called as the 1 ohm। क्लियर है ये? ओके, क्लियर। अच्छा, इस वाले टर्म में कभी कभी कुछ वर्ड्स में तुम्हें फंसाने की कोशिश करेंगे। एक वर्ड आता है वेरिएबल रेजिस्टेंस का। वेरिएबल रजिस्टर बोल सकते हो, वेरिएबल रजिस्टर का, या फिर जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका एक्चुअली नाम होता है रियोस्टेट। रियोस्टेट, ठीक है। तो जियोस्टेट होता क्या है, बेसिकली हमें बस उसका आइडिया लेना है कि होता क्या है। जियोस्टेट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, विच changes the electric current in a circuit without without change in without changing, basically better I write it, without changing its potential difference, potential difference। ओके, तो इस वाले में कैसे कर सकते हैं, जैसे कि ओम्स लॉ का जो भी रिलेशन है, मैथमेटिकल रिलेशन V इज इक्वल्स टू आई आर। अगर हम यहाँ से R की वैल्यू को देखें, सो अगेन दैट इज V बाय I। ठीक है, तो हमें इसको कांस्टेंट रखना है, तो हम क्या करेंगे, और इसको मेरे को चेंज करना है, तो अगर इसको चेंज करना है तो आई हैव टू चेंज द वैल्यू ऑफ R। तो रियोस्टेट एक्चुअली वही करता है, वो रेजिस्टेंस की वैल्यू को घटाता बढ़ाता है। अगर वो कम कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगा। अगर ये रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ा देता है, इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू अपने आप घट जाएगा। तो रियोस्टेट का एक्चुअली वही काम होता है, रियोस्टेट बोलो या फिर वेरिएबल रजिस्टर बोल लो, उसका वही काम है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? अगर ये क्लियर है देन आई विल मूव ऑन टू अनदर वन, अनदर कॉन्सेप्ट, नॉट अनदर कॉन्सेप्ट, यही है, उसके आगे हम बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, बात करें ओम्स लॉ की। मैं देखो इसमें जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी यहाँ से फिर बचेगा नहीं, एटलीस्ट थ्योरेटिकली। ठीक है, अगर कुछ भी बच रहा है प्लीज लेट मी नो, बट मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीजें ही कवर हो। ठीक है, सारी थ्योरेटिकल चीजें, कहीं से भी फंसो नहीं। इवन किसी वर्ड में वेरिएबल रजिस्टर आ गया, कहीं रियोस्टेट देते, कहीं वर्ड में भी कहीं तुम ना फंसो। ठीक है, अच्छा, ओम्स लॉ की बात करें तो ये फंडामेंटल लॉ है क्या? फंडामेंटल फंडामेंटल लॉ है क्या? नहीं, ये फंडामेंटल लॉ नहीं है, इट इज जस्ट एन इम्पेरिकल, इम्पेरिकल
रिलेशन, इंपेरिकल रिलेशन। ये क्या हुआ? मतलब फंडामेंटल हम इसीलिए नहीं बोल सकते बिकॉज इट इज नॉट वैलिड, या फिर बोल सकते इट इज नॉट ट्रू एवरीवेयर। इट इज नॉट ट्रू एवरीवेयर। ठीक है, जैसे कि बात करें मोस्ट ऑफ द मेटल्स पे दिस लॉ इज वैलिड। Okay, this law is valid on most of the metals. Okay, but there are a lot of other substances where this law is not valid. Okay, तो एक्चुअली बेस्ड ऑन दैट ना कुछ बहुत सारे ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जिस पे ओम्स लॉ, लेट मी चेंज दिस हियर, इट इज creating, okay fine, where Ohm's law is not valid. Ohm's law is not valid. It's not true. वैसे जो कंडक्टर्स होते हैं उनको बोल देते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ठीक है, नॉन ओमिक कंडक्टर्स। और जो फॉलो कर रहे हैं जो भी, तो उनको बोल देते हैं ओमिक कंडक्टर्स। ठीक है, ये क्लियर हुआ? तो बेसिकली फिर से मैं बता देता हूँ, ओम्स लॉ जो है फंडामेंटल लॉ नहीं है, इट इज जस्ट अ एम्पिरिकल रिलेशन विच इज, if it is proved to be very true for metals but it may not be true for all the conductors। ठीक है, जैसे कि जहां पे हम सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर्स की जब हम बात करेंगे तो जरूरी नहीं कि ओम्स लॉ वैलिड हो, वहां पे वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात होगी, हमने यहाँ पे ओम्स लॉ की बात करी। ओम्स लॉ में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है जो कि आर होता है, उसके बारे में बहुत सारी बातें करी। रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट होता है किसी वायर में, उस चीज के बारे में बात करी। ठीक है, ये सारी बातें होगी। ठीक है, ओम क्या होता है, उसका ऐसा यूनिट क्या है, वन ओम को कैसे हम डिफाइन करते हैं, ग्राफ ऑफ वी वर्सेस आई की बात करें हमने, ग्राफ ऑफ आई वर्सेस वी की बात करें, और कैसे हम उसके स्लोप से रेजिस्टेंस तक पहुंच सकते हैं, उन सारी चीजों की बात करें। ठीक है, ये क्लियर हुआ? अगर ये चीज क्लियर हुआ तो हम बात करते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टर और रेजिस्टिविटी। क्या ये तीनों सेम है? बात करते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टर। ठीक है, आर दे ऑल सेम? आर दे ऑल सेम? आई गेस नो। अगर सेम होता तो अलग अलग नाम क्यों रहता? अगर सेम नहीं है तो हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? दिस इज द क्वेश्चन, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? ठीक है, सो ठीक है, तो बात करते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टर की, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, अगर इफ आई टेल यू वन सिंपल एग्जांपल, लेट्स टेक द केस ऑफ अगेन द रोड ट्रैफिक। ठीक है, तो रेजिस्टर की अगर मैं बात करूं इन सिंपल टर्म्स, देन रेजिस्टर्स आर बेसिकली एन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ओके, व्हिच प्रोड्यूसेस द रेजिस्टेंस। ठीक है, अच्छा इसको इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि देयर इज अ रोड, इन द रोड इफ देयर आर स्पीड ब्रेकर्स, ठीक है, सो दोस स्पीड ब्रेकर्स एक्ट एज अ रेजिस्टर व्हिच स्लोज योर स्पीड, स्लो द स्पीड ऑफ योर कार, बाइक और व्हीकल, एनी व्हीकल। ठीक है, अच्छा, द क्वालिटी ऑफ योर रोड, ठीक है, if there are potholes in that, if the road is not that good, then that quality of road determines, how fast or how slow you can go. So that determining factor in the terms of electric current is something called the resistivity। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। रेजिस्टर की बात होगी, रेजिस्टर जो होता है कोई एक इक्विपमेंट होता है दैट क्रिएट्स द रेजिस्टेंस, और रेजिस्टिविटी मतलब कि उसका प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे कि एक रोड में पॉट होल्स आर देयर, डिफरेंट रोड इज नॉट दैट गुड, देन देयर विल बी मोर रेजिस्टेंस। अगर रोड अच्छा है देन द रेजिस्टेंस विल बी लेस, मतलब कि स्पीड आपका ज्यादा होगा, रुकावट नहीं होगी। एंड रेजिस्टेंस इज एक्चुअली व्हाट, जो रुकावट, जो वहां पे रुकावट हो रही है, रुकावट पैदा हो रही है, उस चीज को ही रेजिस्टेंस बोल दिया गया। अच्छा, रेजिस्टेंस के बारे में अच्छी खासी बातें हो चुकी है। ठीक है, रेजिस्टेंस के बारे में बहुत सारी बातें हमने करी है। अभी रेजिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट होता है दैट इज ओम, ये हमें पता है। रेजिस्टिविटी इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल, जैसे कि अगर हम बात करें कॉपर की,
ठीक है, तो उसमें रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। सिल्वर में चले जाओ, इन दैट वन द रेजिस्टिविटी इज इवन लेस। ठीक है, रेजिस्टिविटी कम होने का सेंस ये है कि इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो बेटर इन दोज मटेरियल्स। ठीक है, सो रेजिस्टिविटी इज बेसिकली इट, यू कैन अंडरस्टैंड इट एज अ, इट इज द फंडामेंटल नेचर, यू कैन से, प्रॉपर्टी बोलना शायद सही नहीं होगा, इट इज द नेचर, मतलब इंट्रिंसिक नेचर है उसका, किसी भी इंट्रिंसिक नेचर ऑफ एनी, मोस्टली मेटल्स लिए जाते हैं, एनी कंडक्टर यू कैन से। और इसको जो मेजर करते हैं, इट इज मेजर्ड इन ओम मीटर। ठीक है, यू कैन से ओम मीटर। ठीक है, इट इज मेजर्ड इन ओम मीटर। अच्छा, इसको डिनोट करते हैं एक ग्रीक लेटर से। ठीक है, इसको रीड करते हैं आर एच ओ रो। ठीक है, we will be talking more about this resistivity term when I'll be talking about just next the factors, we'll be talking about the factors affecting the resistance, वहां पे हम बात करने वाले हैं। अच्छा, in some of the question you can expect the question from this side, okay, where you will be getting some numericals दिया रहेगा, and some question will be asked based on the resistivity। अच्छा, resistivity का अपना कुछ वैल्यू होता है, जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स लेके बता देता हूँ। जैसे सिल्वर हो गया, ठीक है, सिल्वर का जो रेजिस्टिविटी होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ठीक है, उसी तरह कॉपर का हो गया, एल्यूमिनियम का हो गया, बहुत सारी चीजें, जो भी है, इन सारी चीजों का अपना एक रेजिस्टिविटी वैल्यू होता है। अच्छा, ये याद करना है क्या? नहीं, ये याद नहीं करना। इन द एग्जाम इफ दे आस्क यू द क्वेश्चन रिलेटेड टू इट, फॉर श्योर दे विल गिव यू अ डेटा, दे विल गिव यू द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो उसके लिए परेशान नहीं होने का। ठीक है, तो बात हो गई यहाँ तक कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ये सारी चीजें समझ में आ गई। तो अब हम बात कर सकते हैं फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को। ठीक है, ऐसे क्या क्या फैक्टर्स है जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि फिर से अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अगेन अबाउट द रोड ट्रैफिक वाला एग्जांपल, मान लो कि रोड बहुत दूर तक लंबा सा, जैसे कि कोई ट्रैफिक लगा हुआ, बहुत लंबा सा ट्रैफिक है। ठीक है, ये पूरा कार इधर लगा हुआ है, ऑल्दो इट लुक्स लाइक, आई फील लाइक आई एम मेकिंग वाटर, ओके, बट ठीक है, समझने की कोशिश करो, इमोशंस आर मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो मान लो ये पूरा यहाँ पे ट्रैफिक लगा हुआ है। इफ दिस ट्रैफिक इज फॉर लॉन्ग टाइम, देन द वेस्ट ऑफ एनर्जी इज मोर। ओके, सेम केस है इलेक्ट्रॉन्स के साथ, भी सेम केस है। इफ द वायर इज सो लॉन्ग, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। ठीक है, सो यहां से क्या समझ में आता है कि जो आर रेजिस्टेंस का वैल्यू है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। ठीक है, जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा। ठीक है, मोर इज द लेंथ, मोर इज द रेजिस्टेंस प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अच्छा, सेम केस में मान लो कि एक तुम्हारे पास केस है कि ये ऐसा रोड है पतला सा, ओके, नैरो रोड, and another one you have a great highway, that also one way, so where it is easy to move, obviously the highway, right? In the narrow one you will be wasting more energy and you cannot travel more distances in that much time, and that much energy only you cannot travel. So it means that this area, let's say if you consider this in wire के केस में क्या हो सकता है, ये वायर है सब, ठीक है, तो ये जो एरिया जो हो गया, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ओके, डिनोट मैं कर देता हूं ए से, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, अच्छा डायरेक्टली नहीं हो सकता, सॉरी सॉरी, जो रेजिस्टेंस होगा व्हाट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब कि अगर एरिया ज्यादा है, इफ द एरिया इज मोर, देन फॉर श्योर रेजिस्टेंस का वैल्यू विल बी लेस। इफ द एरिया इज लेस, ठीक है, सो रेजिस्टेंस का वैल्यू विल इंक्रीज। सो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या बोला मैंने, इनवर्सली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, इन दोनों को अगर एक साथ लिखने की कोशिश करें, ठीक है, फर्स्ट वन क्या आया था हमारा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल,
एंड दूसरा क्या था, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। इन दोनों को एक साथ अगर हम लिखने की कोशिश करें, देन आई कैन राइट इट एज आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ई। अच्छा, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर हम हटाए, then I will get R is equals to rho times L by A। अच्छा, ये अब याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द काइंड ऑफ फेवरेट सेक्शन जहां से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। अच्छा, ये रो और कुछ नहीं, वही रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी, जिसका की जिसको की ओम मीटर में मेजर किया जाता है। सिंबल रो है, ग्रीक ग्रीक लेटर ना शायद, या ग्रीक लेटर। और हाँ, सो ये हो गया आर की वैल्यू। ठीक है। सो इन शॉर्ट यू जस्ट हैव टू रिमेंबर आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। ठीक है। यहाँ से लिटरली बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे एग्जाम, स्कूल एग्जाम की बात कर ले, बोर्ड एग्जाम से भी। ये फेवरेट सेक्शन है जहाँ से न्यूमेरिकल्स, अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा, ये जो रो है, इट एक्चुअली shows the nature of material। एज आई टोल्ड यू, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। पता है ना कि ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। Intrinsic property, it means that it is the intrinsic property of that material that how much resistance it will produce। ठीक है। Rho just tells that how much resistance it will produce per meter। ठीक है। So that's why it is the nature of the material। क्लियर हुआ ये? क्लियर हुआ? ठीक है। अगर इफ दिस इज क्लियर, देन इससे जुड़े हम क्वेश्चंस करेंगे फॉर श्योर। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, विल टॉक अबाउट दैट। हम उससे पहले बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। जब हम स्टार्टिंग लेक्चर स्टार्ट ही कर रहे थे, जब हम ओम्स लॉ की बात कर रहे थे, तो वहां पे हमने बोला था कि ओम्स लॉज आर वैलिड फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर्स। लगभग एक समान टेम्परेचर होना चाहिए। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है, वो अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए अलग अलग तरीके का देखा गया है। जैसे कि बात करें, अगर स्टार्ट करें कंडक्टर से, कंडक्टर्स से, सो इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर्स, ठीक है, सो रेजिस्टेंस का वैल्यू विल इंक्रीज। ठीक है, देयर इज नो डाउट इन दैट। क्यों? क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है? जैसे कि मान लो कि ये एक वायर है, जिससे कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है ऐसे मूव कर रहे हैं। ठीक है। अब सॉलिड्स जो है, दे आर मेड अप ऑफ मैटर, उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, जो भी सारी चीजें। व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है, व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दिस वन, so they started moving fastly, but at the same time they started colliding with each other। ठीक है, they started colliding with each other, and in that one they lose energy। okay, they collide with each other and hence they lose energy, and because of that the value of resistance increases। okay, क्या बोला मैं? फिर से सुनो। बात करें अगर कंडक्टर्स की, ठीक है, तो उसमें इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर, because of that increasing temperature they move very fastly, they collide with each other, because of that they lose energy। okay, and when they lose energy, because of that the resistance का value increases। ठीक है, ये हो गई बात कंडक्टर्स की। बात करें अगर अलॉयज की, अलॉयज क्या होता है? अलॉयज मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स और नॉन मेटल्स। ठीक है। तो एलॉयज की अगर हम बात करें, जैसे कि एक एग्जांपल मैं ले सकता हूं, जैसे निक्रोम। Nichrome is one example. Now, when I talk about nichrome, when I increase the temperature, when the temperature increase, there's very less changes seen in value of resistance। वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस के वैल्यू में मोस्टली अगर एलॉयज की बात करें, जैसे निक्रोम वायर हो गया, ये सारी चीजें होगी, तो in these materials it is seen that with the increase in temperature there's not much change in their resistance। okay, their resistance is kind of constant। okay, that's why, that is the reason they are used to make the electrical equipments to produce the heat energy। जैसे कि हीटर वगैरह में यूज हो गया,
कुकर हीटर जिसमें कुक करते हैं, वो हीटर वाला पार्ट, तो उन सारी चीजों में, इलेक्ट्रिक आयरन, इन सारी चीजों में वी यूज दैट। ठीक है। अच्छा, सेमीकंडक्टर में बिल्कुल उल्टा केस है। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स की भाई अलग दुनिया में पहले ही बता चुका हूँ, वो हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स में उल्टा होता है। व्हेन आई इंक्रीज द टेम्परेचर, द रेजिस्टेंस का वैल्यू विल डिक्रीज। क्यों ऐसा होता है अभी हम बात नहीं कर सकते, विल टॉक फॉर श्योर, विल टॉक सम अदर डे। बट in this one, you just remember semiconductors. If the temperature is increased, resistance resistance का value decrease. It means in the semiconductors, if I increase the temperature, the electric current will flow more easily. Okay, they will flow more easily. ठीक है, तो एक बार और मैं तुरंत से समराइज कर दे रहा हूँ। बात करें अगर कंडक्टर्स की, अगर कंडक्टर्स में इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर, रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा। एलॉयज में इंक्रीज करने से कोई खासा चेंज देखा नहीं जाता। ठीक है, बट व्हेन आई टॉक अबाउट द सेमीकंडक्टर्स, इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर, रेजिस्टेंस का वैल्यू एक्चुअली डिक्रीजेस। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अगर ये क्लियर है, देन let me check, then I guess we can go for doing some questions. Okay, तो कुछ क्वेश्चंस कर ले। ठीक है, ये सब मैं हटा दूं, I just erase it off. Okay, okay, now let us take some questions. ये सब अगर क्लियर हो गया, देखो, in short I'll tell you the formula which we are going to use today, which is equals to B equals to IR. That is the one formula that we will use. And the second one is the value of R resistance is equals to rho L by A. ये दो फॉर्मूला है जो हम भी यूज करने वाले हैं। ठीक है, लेट्स सी द क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप इट्स विजिबल, चेक द, okay, recording, everything going fine. Okay, great. Now the first question, you want to try? Let's try. You try it once. Okay, I'll give you the answer. First you try, then I'll start. Okay, it is 4.8 into 10 to the power 3 ohm. This is the answer as I calculated earlier. So yeah, that you try. Let's see how much you get. But if you are getting this, you are correct. You can move on to next question. ठीक है, नहीं किया तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। See, what all things are given? What all things are given? First one, potential difference, which is V, is given as 12. ठीक है, that also in the SI unit. There's no problem in that. It is given in the SI unit. Okay. अभी करंट का वैल्यू दिया हुआ है, see here, 2.5 milli ampere. अच्छा, if I convert this into SI unit, that will be 2.5 into 10 to the power minus 3 ampere. क्लियर हो गया? नाउ वी हैव टू फाइंड द रेजिस्टेंस आर क्या है। सो हम लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ वी नो दैट V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से R का वैल्यू आई कैन क्लियरली से V बाई आई। नाउ V का वैल्यू इज 12, I का वैल्यू इज 2.5 into 10 to the power minus 3, so I can write it as 12 by 2.5 into 10 to the power 3। ये इसको जब कट करेंगे, सो देन आई कैन राइट इट डाउन एज 44 यहाँ पे। अच्छा, मैं इस आराम से आई कैन break it down into 120 by 25 into 10 to the power 3। अच्छा, ये सारी चीजें ओम में आने वाली है। ठीक है, रेजिस्टेंस का वैल्यू ना 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 20, 5 24, 5 24, so 5 4 जा 20, a 4 40, 5 8 जा 4.8 into 10 to the power 3 ohm। दिस इज योर आंसर। ओके, देख लो, चेक कर लो। ठीक है, अगर आ गया तो बढ़िया, नहीं आया तो you check out the solution once again। ठीक है, बट हर एक क्वेश्चन यू हैव टू ट्राई इट वंस बाय योरसेल्फ, देन ओनली यू सी द आंसर। ठीक है, अभी हम क्विकली वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, बात करें अगर क्वेश्चंस की, तो एट द एंड ऑफ ये चैप्टर का सारा थ्योरी जब खत्म हो जाए, ऐसा नहीं कि हम पीवाईक्यू अभी उठा नहीं रहे, बट पार्टिकुलरली मैं नहीं अभी उठा रहा। ठीक है, व्हेन एवरीथिंग इज ओवर, देन आई विल separately do a video where I will be talking completely about the the previous year questions। एक पूरा सेशन होगा उसके लिए। ठीक है, ये 20 ओम था, यहाँ पे मैं ओमेगा लेके आ गया हूँ, 20 ओम था। ठीक है, नाउ इन दिस वन, अच्छा लेट्स ट्राई, यू फर्स्ट ट्राई। Okay, I'll give you the answer also.
If you are getting it, then correct, you can move to next question. You will get the current का value is 1.5. There's no much big deal in this one. Let's try. Okay, done. You can pause the video and you can try by yourself. ठीक है, अगर कर लिया तो let us start. Okay, now see what all things are given. Resistance का value is given which is 20 ohm. ठीक है, और initially the voltage is given as 10 volt. Okay, अभी इस केस में we know that V is equals to IR. ठीक है, तो यहां से if I try to find the value of R is there, V is there, so I will be V by R, so it is 20 by 10 which is 2 ampere. ठीक है, इनिशियली 2 एम्पियर आ गया. इफ आई इट इज सेइंग नाउ इफ दिस वन इज चेंज टू फ्रॉम 10 volt to 30 volt, 30 volt, then what would happen? Okay, then what would happen? I guess there's some problem in the solution. देखते हैं, शायद ये आंसर नहीं आएगा. आई गेस सो. मैंने थोड़ा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का प्रॉब्लम कर दिया. देखते हैं, नो प्रॉब्लम. नाउ व्हाट आई एम हैविंग, see what I'm having now resistance का value is not changing. Is it changing the value of resistance? No, resistance remains the same. Resistance only, okay, so resistance का value remains the 20 ohm and V का value now changed from 10 volt to 30 volt. Okay, this is now 30 volt. So यहाँ से अगर हम फिर से I निकालने की कोशिश करेंगे, that is equals to V by R. आई गेस आंसर आ रहा है. बी वाई यहाँ पे पर हमने क्या करा, 10/20 ना, यहाँ पे 0.5 आना चाहिए. नहीं, यहाँ पे हमने मिस्टेक करा. ये वाला पूरा टर्म जाएगा, ये पूरा टर्म जाएगा. v का वैल्यू 20 नहीं है, r का वैल्यू 20 है. सो v हमारा 10 है और r का वैल्यू 20 है, विच इज 1/2, विच मस्ट बी इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर. ठीक है, ये क्लियर हो. यहाँ पे अब हम करेंगे I इज इक्वल्स टू v बाय r. v इज 30 एंड r इज 20. सो 20 30 1.5 एम्पियर. ठीक है, तो 1.5 एम्पर आंसर आ गया. आगे सही है, करेक्ट. यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, ये हमने उल्टा रख दिया था, बट आंसर हमारा करेक्ट है. ठीक है, करेक्ट हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो आप फिर से जाके यू कैन रिवाइंड द वीडियो एंड यू कैन चेक इट आउट द सॉल्यूशन अगेन. मैं क्विकली क्वेश्चन नंबर 3 पे जा रहा हूँ. ठीक है, आई एम हैविंग टोटल ऑफ 5 क्वेश्चंस विथ मी इन माय हैंड. I will try to do at least 4 so that I can give you one as your homework. ठीक है, okay, I hope it's visible. ठीक है, clear है. So now see in this question what all data is given. Okay, try करना है, try कर सकते हो, मैं आंसर में बता दे रहा हूँ. आंसर will come out to be 1.5. इसका भी आंसर 1.5 ओम है. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन क्या है? A student conducts an experiment and finds that for a potential difference of 1.5 volt, ठीक है, 1.5 वोल्ट के लिए, 3 वोल्ट के लिए और 4.5 वोल्ट के लिए द करंट आर 0.1 एम्पियर, 0.2 एम्पियर एंड 0.3 एम्पियर रिस्पेक्टिवली. अच्छा, ऐसे क्वेश्चन तुम फॉर श्योर बहुत ज्यादा चांसेस यू कैन एक्सपेक्ट इन द बोर्ड्स एग्जाम. ओके, बोर्ड्स एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन तुम बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना, दैट विल बी डन फ्रॉम द स्लोप वाला क्वेश्चन. मैं कॉन्सेप्ट बताया ना कि v बाय आई ग्राफ बना के उसका स्लोप निकाल के हम रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, सेम वे इट विल बी डन. ठीक है, मैं थोड़ा मार्कर चेंज कर लूं सो दैट आई ड्रॉ द नीट फिगर. ओके ओके, ये हो गया. यहाँ पे हम v रख लेते हैं, यहाँ पे हम रख लेते हैं i. ठीक है, सो दैट आई जस्ट फाइंड द स्लोप एंड आई गेट द आंसर. अच्छा, इसको मैं डिवाइड कर लूँ 1 2 3 4 5. यहाँ पे भी सेम ले लेते हैं 1 2 3 4 5. ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5. करेक्ट. नाउ हम ड्रॉ करते हैं 1.5 के साथ 1.5 वोल्ट. V इक्वल्स टू आई आर अगर है तो यहाँ से R अगर निकालना है तो V बाय आई का स्लोप हम निकालेंगे, डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा. तो V बाय, इफ यू डोंट रिमेम्बर मैं बता दूं, V बाय आई ग्राफ का जो स्लोप है दैट इज नथिंग बट माय रेजिस्टेंस का वैल्यू. ठीक है. अच्छा, V पे 1.5 है, 1.5 समवेयर हियर, और यहाँ पे करंट जो है 0.1 है, 0.1 समवेयर हियर.
ओके, मैं रफली एक ले रहा हूँ। 0.2 के साथ 3 है, 0.2 के साथ 1 2 3, 0.2 और इसके साथ ये एक 3 है, ठीक है। और 0.3 के साथ 4.5 है, 1 2 3 4.5 समवेयर हियर इट इज गोइंग, सो दैट इफ आई ट्राई टू कनेक्ट, ये लाइन होगा जो उन तीनों को कनेक्ट करेगा, ठीक है। मैंने ट्राई टू फाइंड द स्लोप, मैं एक काम करता हूँ, यहीं से एक स्लोप ले लेता हूँ इस पॉइंट से, ठीक है। That means यहाँ से इस पॉइंट के लिए हम स्लोप ले लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। सो ए से बी तक क्लियरली दिख रहा है ये 1.5 से ए बी बाई बी सी हमें निकालना है, जो कि स्लोप का वैल्यू है। अभी ए से बी के तरफ हम देखें तो क्लियरली हमें दिख रहा है दैट इज 4.5 माइनस 1.5, ठीक है। 4.5, ये वैल्यू 4.5 है, ये वैल्यू 1.5 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय बीसी का कितना लेंथ है, बीसी का लेंथ कितना हो गया, क्लियरली इट इज 0.3 और ये 0.1, 0.3 माइनस 0.1, तो ये कितना वैल्यू आ गया इसका, दिस इज 3 एंड डिवाइडेड बाय दिस इज 0 0.2, 0.2 आई गेस, ठीक है। सो 30 डिवाइडेड बाय 2, एक मिनट, ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 2, 15, 15 वैल्यू आ रहा है। माय बैड, माय बैड, 1.5 आंसर नहीं होगा। अगर आपने 1.5 लिखा है तो वो गलत है। आंसर हमारा जो है 15 आना चाहिए था, ठीक है। आंसर वुड बी 15, 1.5 नहीं है, 15 ओम का आंसर है, ठीक है। क्या करा हमने, वी जस्ट ड्रॉ द ग्राफ, जो भी वैल्यूज दिया हुआ है, आई टुक द स्लोप ऑफ द ग्राफ एंड जो स्लोप का आंसर आया दैट इज ओनली माय वैल्यू, ठीक है। ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ, ठीक है। इफ दिस इज क्लियर, आई एम क्विकली मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, एंड दिस क्वेश्चन नंबर 4 इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया देन यू कैन इजीली डू द क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलिए, ओके, नाउ क्वेश्चन व्हाट इट इज सेइंग, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस, अच्छा फिर से ये आ गया ना, 4 ओम है ये, ठीक है। 4 ओम इज अ स्ट्रेच टू डबल इट लेंथ, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस। अच्छा, लेट्स से कि स्टार्टिंग में उसका लेंथ एल था, ठीक है। ट्राई करना है, अगर ट्राई करना है तो मैं पहले आंसर बता दूं, आई होप इट इज करेक्ट। ये होना चाहिए 16 ओम आपका आंसर आएगा, जो नया रेजिस्टेंस का वैल्यू है दैट विल कम आउट टू बी 16 ओम, ठीक है। ट्राई करते हैं। लेट्स से स्टार्टिंग में हमारा जो लेंथ है वो एल है, ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ठीक है। अच्छा, बात करें रेजिस्टेंस की वैल्यू की तो उसका क्या फॉर्मूला था, रो एल बाई ए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारा कितना दिया हुआ है, 4, दैट इज रो एल बाई ए, ठीक है। लेट्स कीप इट इन वन बॉक्स असाइड, ठीक है। बात करते हैं दूसरे पोर्शन की, व्हेन माय लेंथ इज नाउ डबल्ड, लेंथ, माय लेंथ एल डैश, दैट इज द न्यू लेंथ इज बिकम 2l, ठीक है। ये होगी बात, बट इज द एरिया आल्सो चेंज्ड, एरिया क्या है हमारा, आई शुड चेंज द पेन नाउ। बात करें ए डैश की, इज इट ए, इज इट ए, नो, ए नहीं होता, क्योंकि मान लो स्टार्टिंग में द वायर वॉज समथिंग लाइक दिस, उसके बाद जब स्ट्रेच हुआ तो ये स्ट्रेच होके थोड़ा लंबा खिंच गया, जो कि 2l लेंथ का ये हो गया, ये l लेंथ का था। सो देर इज अ चेंज इन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑल्सो, देर इज अ चेंज इन इट। अच्छा, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होगा बट इज द वॉल्यूम चेंजिंग, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वॉल्यूम इज इट चेंजिंग, नो, वॉल्यूम जो भी पहले से था सेम वॉल्यूम रहने वाला है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में अगर हम उसके वॉल्यूम की बात करें तो कैन आई से दैट उसका जो वॉल्यूम था दैट इज इक्वल टू इट्स एरिया, जो ओरिजिनल एरिया है, इनटू लेंथ, ठीक है। ये दिस विल बी इक्वल टू सेम इफ आई इंक्रीज द लेंथ बाय 2l इनटू द न्यू एरिया। तो यहां से अगर हम न्यू एरिया फाइंड करने की कोशिश करें देन इट विल बी a टाइम्स l डिवाइडेड बाय 2l, दैट विल बी माय न्यू एरिया। सो माय न्यू एरिया कम्स आउट टू बी a by 2, so a dash come out to be a by 2, clear, ठीक है। So now we are having length, we are having area, both the things I am having. So now I can write the new resistance R dash the value which is 2 times L, acha rho, for so rho, acha, in the whole process the material is not changing,
इफ द मटेरियल इज नॉट चेंजिंग तो रो का वैल्यू भी सेम रहेगा, दिस नो प्रॉब्लम इन दैट। अच्छा, यू कैन से दैट द सर की रो का वैल्यू इसमें नहीं दिया हुआ, हाउ वी विल कैलकुलेट दैट, एक्चुअली चाहिए भी नहीं, मैं बताता हूँ कैसे। अच्छा, न्यू एरिया जो हमारा आया है, अच्छा मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। नया लेंथ डिवाइडेड बाय नया एरिया, ठीक है। नया लेंथ जो है हमारे पास वो 2l है, और नया एरिया जो है a/2 है। इसको जब हम सॉल्व करें, सो आई विल गेट रो 2 टाइम्स l इंटू 2 डिवाइडेड बाई ए। बेसिकली इसको हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स रो l बाई ए। अच्छा, रो l का वैल्यू क्या था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रो l, सी फ्रॉम हियर value of rho L by A is 4. So put it here. It comes to 4 into 4. So your new resistance का value will come out to be 16 ohm. ठीक है? So your new resistance will come out to be 16 ohm. Clear है? ठीक है? Clear है? ओके, तो मैं एक क्वेश्चन आई एम लिविंग इन द होमवर्क, मैं इसको हटा दे रहा हूँ क्विकली सो दैट आई कैन रिफ्रेश द पेज इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, don't get surprised by seeing, and don't get actually afraid by seeing the length of the question. The question is not at all that much hard or tricky. uh, 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 Clear है ये इतना? ठीक है, now see, a wire of given material having length L and the area of cross section A has a resistance of 4 ohm. What would be the resistance of another wire of the same material? देखो, मटेरियल अगर सेम है तो रो का वैल्यू सेम रहेगा, सेम यूज करेंगे। लेंथ चेंज हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो गया, ठीक है। तो नया जो क्रॉस सेक्शन एरिया, नया जो लेंथ है, उसको वैल्यूज पुट करो, आंसर जो है आ जाएगा। ट्राई करना, इसका आंसर जो है 1 ओम आना चाहिए, नहीं आता है देन इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस, आ गया तो अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट चीज जो जाते जाते मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ठीक है, दैट इज द कंडक्टेंस। just quickly do it, the last, okay, conductance, conductor, and and conductivity, conductivity सेम चीज। अगर हम बात करें कंडक्टेंस की, सो इट इज अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। कंडक्टर की बात करें तो इट इज अपोजिट ऑफ रेजिस्टर, ठीक है। और कंडक्टिविटी की बात करें, दिस इज आल्सो द इंटरनल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इट इज अपोजिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ठीक है। अच्छा, जो हम कंडक्टिविटी की बात करते हैं उसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। इसको हम डिनोट करते हैं एक अलग लेटर से, जिसको कि बोल देते हैं सिग्मा, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। और जो यूनिट हम यूज करते हैं टू मेजर द कंडक्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल, दैट इज द साइमन, साइमन, ठीक है, साइमन पर मीटर, ठीक है, एस पर एम, साइमन पर मीटर। अच्छा, इन शॉर्ट आई कैन से दैट द कंडक्टिविटी इज इनवर्स ऑफ resistivity, ठीक है। आई कैन राइट लाइक दैट, कंडक्टिविटी इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। ये क्लियर हुआ? क्लियर हुआ, ठीक है। अच्छा, कंडक्टेंस को कैसे मेजर मेजर करते हैं? कंडक्टेंस को मेजर करते हैं साइमन में, SIEMEN, और डिनोट करते हैं लेटर G से, ठीक है। इतना काफी है। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे ट्रिकी से आ जाते हैं, सो यू शुड नॉट स्टक इन द वर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस वाज इंपॉर्टेंट। और जो जी जिससे हम डिनोट करते हैं, इट इज अपोजिट ऑफ आर, ठीक है। तो आई गेस यहीं तक हमारा आज की बातचीत रहेगी, आज की बातचीत यहीं पर खत्म करते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर दैट विल बी टॉकिंग अबाउट द रेजिस्टर्स इन सीरीज, उसके बाद इन द सेम lecture we will try to cover the resistance in parallel also, and accordingly we will try to derive it also. There is one general formula for resistance in series and one in resistance in parallel. Based on that we'll do a question. Acha, this section is really important for board exam, resistance in series and resistance in parallel, so we'll do that in great detail in the next lecture. Till then, enjoy, take care, thank you, bye bye.